Hi everyone. Hope you are in good health. My name is Rupinder Kaur. I am the Managing Director of Seven Oceans Immigration and Education Consultants. So once again, I am here in front of you with one of the public college of Canada, which is the College of the Rockies. So in this session, we'll try to let you understand that how you can start your studies in College of the Rockies, Canada. As we all know that students are very confused about their studies these days. So today we try to give you all the information that how you can choose your study destination and what are the courses available for upcoming intakes, which is Jan and May 2021. So if you want to assess your profile, you can contact us on the number scrolling on the screen, and our office location is at New Leela Bhavan Market, Patiala. So we are dealing with the study visa to Canada, Australia, New Zealand, UK, US, and Europe. Since 2009, we are helping students to find their dream destination. Also, I would like to thank you for joining us in today's live session. So, we are here to guide you all about the study in Canada. And in this session, we have Mr. Sunny Mehra, Manager India from the College of Rockies. So, Mr. Sunny will be guiding us about the courses available in COTR and their requirements, their fee structure, and all about the application process. So, we also welcome your comments and queries. If you want to ask anything about the courses and their requirements from your side. So we are welcome, and you can send us your documents for the free assessment also. So welcome, Mr. Sani. Hello, ma'am. How are you? Thank you so much for your invitation, and thank you so much for this particular session also because I think this session will be a very important session for those who are looking for their my college. So Colorado Rocky is the one of the best college in British Columbia. It's a public Yeah. college. So today I will try to give you a maximum information Excuse me, sir. I think there's an internet connectivity problem. interactive Are you hearing me, sir? session for the students. Excuse me. I think आपके इंटरनेट में थोड़ा शायद इशू है. Yes, खैर ma'am, I सब can hear जगह you. ही है ये तो. Yeah. Okay. Fine. So should we start, sir? Hello. So, first of all, Hello. Rupinder ma'am, thank you so much. And I would like to share one presentation in Sure. this about the college, and they just have a picture about how we are supporting them. So I'm just sharing my screen to show you other points of Culture Rockies. Okay. I think. एक्सक्यूज मी सॉरी व्यूअर्स आई थिंक मिस्टर सनी के इंटरनेट में थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है सो यू डेफिनेटली जॉइन अस विद इन अ कपल ऑफ seconds. Hello. I'm just sharing my screen with you, ma'am, and then you can see. Okay, okay, sir, fine. Okay, so can you see my screen? Is it visible? Hello, is it visible to you? Okay, perfect. So here you can see uh, called the Rockies. Definitely, my name is Sunny Mehra. I'm the manager in India.
India called the Rockies. So if I talk about my college, it's a public college, it's a government funded institute, and we are in British Columbia. Although this college is a very popular college, but the good part is its opportunities and how they are supporting to the international student. You can see Rocky Mountain inspired, small college proud. So definitely this is our motto. And if I talk about the college, so it's surrounded by Rocky Mountains. It's in British Columbia. Cranbrook is the city which is our main campus, although we have 5 regional campuses, but Cranbrook is our main campus. So definitely we are trying to support our student in each and every aspect. And as you can see, small college proud. So we have a very good faculty, and our class sizes are very small, not in the size but in the capacity, because we are having 30 to 40 students in each class, so the student will be having a direct interaction with their faculty. And the most important thing about College Rockies is that we are in #1 ranking in international student satisfaction. So this #1 ranking is provided by the Canadian government only. So because we are providing a dedicated support to our student in each and every aspect. Overall student satisfaction ratio is very much high. If I talk about the lecturers and the teachers are very well qualified. We have virtual learning and online libraries, earning money with study and employability. So this is the most important thing for the student, because majority of the student want to pursue their program along with the earning situation. So that's how we are supporting them, that's how we are encouraging them. And if I talk about the orientation thing, so registration program and orientation thing is very much good, and at the time of their orientation day only, we are providing a list of job opportunities, especially part-time opportunities, so that they can choose from and go for it. So that's how we are supporting them. If I talk about the location, as you can see, so we are in Cranbrook City. We are near to Alberta border, and definitely British Columbia is a very popular province in terms of its success rate and job opportunities what they're providing to the international student. So this is the location, Cranbrook City, as I already said. For our majority of the programs, will be going for Cranbrook City, Cranbrook campus, and it is a famous resort. Basically, it's a tourist destination. There are lots of international tourists come to this city, enjoy their vacation, and spend their money. And if I talk about the environment, is very safe, clean, modern, and friendly. Although it's far from the bigger cities like Vancouver and Calgary. If I talk about especially about Vancouver, so it's 80 to 90 minutes flight distance from Vancouver and 40 minutes flight distance from Calgary. But it's in regional area. Definitely, there will be a good situation for the student which will be trying to go for their high studies in regional area, because they'll be saving a lot of money in their day-to-day life also. So part-time opportunities are very easy, affordable living expenses. So definitely, the standard of living is very high, but the living expense is quite affordable. Student will be enjoying 4 seasons like spring, summer, fall, winter. So it's a good opportunity for the international student. So why choose College of Rockies? Definitely, as I already said, so the class sizes are very small. Average in per class, there will be a 30 to 40 student average. So it will be a good opportunity for the student to directly interact with their faculty. Extra support will be provided to the student, and especially if I talk about those students who are looking for an assistance in their academics, in their practical thing, in their project making. So we are providing a free mentorship support to each and every student. They need to ask for a mentorship, and definitely they'll be getting a mentorship support. It's a free of cost service. We are also providing a free bus pass to each and every student, and we are also providing a free airport pickup also. They need to inform 7 to 10 days prior to their arrival, and we'll be arranging free airport pickup also. So you can see the affordable fee structure and economic cost of living. As I already mentioned, this city is quite affordable. So this is our campus. This is the picture of our campus. So campus is very good, very well equipped campus with all the facilities, with high tech labs, digital libraries, Olympics has big track and ground will be there. So here you can see the classes and the classrooms. So you can see smart board in every classroom. So you can see in the picture how interactive and how good this classroom is. And we have a large computer lab, Olympics track and ground for the student who are looking for their athletics, and they're good in their sports. So definitely they can go for it. And wide range of ebooks and online database will be provided. Air Wi-Fi is obviously free in the campus. So these are the accommodation facilities. So it is also very much affordable. So apartment style housing facility will be there, kitchen, living room, community lounge, and will be there for the student. So
the living expenses is very much affordable. So these are some stats and facts about the international students. So in the year of in the session of 2018-19, so 60% of the international students are in the College of Rockies. And if I talk about especially about India, so in 2019, 230 students from India is in the fall of 2019 itself. So it's a good number basically. So these are some programs. So I'll be discussing some programs in the later part, and these are some English requirements. In if I talk about the general academy requirement, which is mentioned over here, it's 6 no module less than 6 for UG program, and 6.5 no module less than 6 for PG degree program. So that's how we are supporting them, and it's very easy to achieve. So these are some general academy requirement. If I talk about in 10th and 12th grade, we want 50% marks in 4 core subjects, and mathematics is very much compulsory for majority of the programs. But I have a good news for those students who doesn't have mathematics in the grade 12th. So I'll be sharing this information in later part. So these are some requirements for associate of science degrees and associate of arts degrees. So these are the documentation what we required. So we required 10th and 12th mark sheet, passport copy, IELTS score, and obviously we required degree certification for PG only, and for semester degree mark sheets for PG only. So this is our alumni. He's got a job in very in a good company. So that's how we are encouraging our students. So these are the things I want to share with you in this presentation, and I would like to interact with you directly. And I request Rupinder ma'am to share some information about College of Rockies, and I'll definitely answer your questions. Sure, sir. But it was really nice presentation. So काफ़ी चीज़ें उसमें students को पता चली गया होगा. तो sir, for the upcoming intakes, like Jan is just closing in few days, and for the May, तो admissions May के लिए क्या-क्या requirements हैं, क्या hot selling जो courses हैं आपके, and Jan के लिए क्या deadline है अभी students के लिए? डेफिनेटली मैम, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जनवरी इनटेक अभी भी हमारा ओपन है, और आई गेस टिल 1 नवंबर तक हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं जनवरी के लिए। और जनवरी के लिए जो भी हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो स्पेशली एसोसिएट डिग्री है, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के अंदर हमारी जो प्रोग्राम्स है, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स के अंदर हमारे 3 प्रोग्राम्स है, सोशल वर्क एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एसोसिएट ऑफ आर्ट्स, एंड एक जनरल एसोसिएट ऑफ आर्ट्स है। ये एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिग्री उन स्टूडेंट के लिए है जो एक यूनिवर्सिटी ट्रांसफर चाहते हैं आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एकेडमिक्स या उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की नहीं बन रही होती है, सो वो एक यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम ले लेते हैं। खासकर एसोसिएट डिग्रीज उनको हेल्प करती है। सो जैसे ही वो एसोसिएट का ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया एंड और यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज, इन दोनों यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में उनको यूनिवर्सिटी ट्रांसफर मिल जाता है विद क्रेडिट्स। और 2 साल का हमारा प्रोग्राम है, 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यूपी हमारे सभी प्रोग्राम्स के साथ अवेलेबल है। सो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन एंड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं बाकी प्रोग्राम्स की, सो हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स है, जिसमें बिजनेस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड जनरल, ये 4 हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हमारा एक बीबीए का प्रोग्राम है, ये कंप्लीट 4 इयर्स का बीबीए डिग्री प्रोग्राम है। देन वी हैव अ पीजी डिप्लोमा इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। पीजी डिप्लोमा है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस में, 2 साल का पीजी डिप्लोमा है। और अगर मैं बात करूं इन सभी बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, सो फ्रैंकली स्पीकिंग सभी प्रोग्राम्स में हमें 12th ग्रेड का मैथमेटिक्स का कंपल्सेशन है कि 12th ग्रेड में बच्चे के पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। बट अभी का जो सिचुएशन है, अगर मैं बात करूं, मैं जनवरी इनटेक में नहीं सपोर्ट कर सकते इसमें, बट मई इनटेक में हम बच्चों को एनकरेज ये कर रहे हैं कि अगर उनके पास 12th ग्रेड में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी वो कॉलेज ऑफ रॉकीज के साथ अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। एसोसिएट डिग्रीज के लिए डेफिनेटली मैथमेटिक्स चाहिए होगा 12th ग्रेड का। बट अगर मैं बात करूं बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, सो 12th ग्रेड में अगर मैथमेटिक्स होते हैं को एक अभी प्रोग्राम लेना होगा मैथमेटिक्स
का अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनको एलओए मिल जाएगा। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पब्लिक कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ आते हैं और वो बिजनेस प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। देन वी हैव क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डिप्लोमा, जनवरी इनटेक की अभी मैं बात कर रहा हूँ। सो जनवरी इनटेक के अंदर हमारे पास क्रिमिनल सोशल जस्टिस एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डिप्लोमा ओपन है। जो बच्चे के पास मैथमेटिक्स नहीं है वो इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। जनरल एकेडमी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में भी शेयर की थी, यूजी प्रोग्राम के लिए 10th एंड 12th में 50% मार्क्स चाहिए हमें 4 कोर सब्जेक्ट्स में। आइल्स के रिक्वायरमेंट है 6 नो मॉड्यूल लेस देन 6 फॉर यूजी प्रोग्राम एंड 6.5 नो मॉड्यूल लेस देन 6 फॉर पीजी प्रोग्राम। ये हमारी जनरल एकेडमिक रिक्वायरमेंट है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। अभी हम पीटी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के पास पीटी है, स्टूडेंट अगर पीटी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो ओवरऑल 56 no module less than 50, this is our PT score and they can definitely apply with their PT score। और जो सक्सेस रेट है पीटी का डेफिनेटली कॉल द रॉकीज का बहुत अच्छा है। सो मैं स्टूडेंट से ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना आइल्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं एसडीएस कैटेगरी में, एंड नॉन एसडीएस कैटेगरी में डेफिनेटली आप पीटी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सक्सेस रेट एनी डे हाई है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जी जी प्लीज कैरी। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, जनवरी इनटेक के लिए काफ़ी सारे बच्चे अभी थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि जनवरी इनटेक में कैसे हम अप्लाई करें, क्या जनवरी इनटेक कैसा इनटेक रहेगा, हम फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो अभी जनवरी इनटेक जो कॉलेज रॉकीज का है, अभी जनवरी इनटेक ऑनलाइन इनटेक ही रहेगा। अभी जो हम बच्चों को एनरोल कर रहे हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए ही कर रहे हैं। जो डेडलाइन है जैसे मैंने बोला 1 नवंबर की है, बट मैं बच्चों को यही बोल रहा हूँ कि आप इससे घबराएं नहीं, डोंट बी अफ्रेड, एंड आप इसे अडॉप्ट करें, बिकॉज आपको थोड़ा समय ही जनवरी इनटेक जो है वो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर आप ऑनलाइन पढ़िए और उसके बाद जैसे ही सिचुएशन ठीक होती है आप ट्रैवल कर सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद काफी बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची हुई है कि 20 अक्टूबर के बाद बॉर्डर्स खुल रहे हैं और बच्चा फ्लाई कर सकता है। तो डेफिनेटली ये बात सही है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी वैलिड स्टडी परमिट है विद ऑल द फॉर्मेलिटीज उनकी कंप्लीट है। न्यू एप्लीकेशंस जो डाल रहे हैं या जो न्यू एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके लिए अभी वीएफएस ऑफिसेज अभी बंद हैं और अभी उनकी स्टैंपिंग भी रह रही है पासपोर्ट के ऊपर, जो भी फॉर्मेलिटीज वो रह रही है, बायोमेट्रिक चल रहा है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता बच्चा फ्लाई नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनवरी इनटेक मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट का एक ऐसा इनटेक है जिसमें वेकेशंस होती हैं, खासकर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूं। रीजन बीइंग क्योंकि जनवरी इनटेक के अंदर विंटर वेकेशंस होती हैं, 3 से 4 महीने की विंटर वेकेशंस होती हैं, बिकॉज बहुत हैवी स्नोफॉल की वजह से वहां पे कॉलेजेस एंड जो वहां की जो सिटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। सो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वहां पे वेकेशंस हो जाती हैं। एनीवे वो 2 कोर्सेज ही चूज कर सकते हैं 5 कोर्सेज में से। एक सेमेस्टर में मैक्सिमम 5 कोर्सेज बच्चा चूज कर सकता है और उसके अंदर जनवरी इनटेक में सिर्फ 2 कोर्सेज ही बच्चे चूज कर सकते हैं। अगर मैं कोविड की सिचुएशन हटा भी दूं तो भी रेगुलर कंडीशन में बच्चे जनवरी इनटेक में अपने कोर्सेज सिर्फ 2 ही चूज कर सकते हैं। सो मैं बच्चों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सिचुएशन को समझे, वहां पे जाके अगर आप पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढते हैं तो अभी की करंट की सिचुएशन में जो इंटरनेशनल टीम से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो कनाडा से हमारे पास जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी पार्ट टाइम की जो अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन अभी भी चल रही है बाकी कंट्रीज में भी, इंडिया में भी, और डेफिनेटली वो धीरे धीरे सॉल्व होगा। सो पार्ट टाइम का जो अपॉर्चुनिटीज है धीरे धीरे बच्चों के लिए बनेगा। सो आप इस एक एक कोटेशन को देख के या इस इंफॉर्मेशन को देख के प्लान इस तरह से मत कीजिए कि आपको फ्लाई करने का मौका मिल जाएगा जनवरी में और इस तरह से। ऑल्दो जिनके पास वैलिड स्टडी परमिट होगा वो डेफिनेटली फ्लाई कर सकते हैं और वो अगर करना चाहे तो अपने कॉलेज से सपोर्ट लेटर लेके फ्लाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज वाइजली। आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना सिचुएशन थोड़ा देखना है कि आपका जो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस है कैसा रहेगा, क्वारंटीन होना पड़ेगा वहाँ पे, सारी चीजें हैं। सो जनवरी इनटेक के लिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन की तरफ जाएं। मे इनटेक डेफिनेटली मैं बच्चों को ये बोलूंगा कि आप एज रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पे फ्लाई कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रोग्राम्स वो जनवरी इनटेक के भी कर रहा हूँ और कुछ प्रोग्राम्स में मई इनटेक के भी करूंगा अभी, ऑल्दो हमारे कुछ प्रोग्राम्स और ओपन होने बाकी है मई इनटेक के लिए, बट जो जनरल प्रोग्राम्स है वो यही रहेंगे। ओके, तो ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ कि 20th से 20th वाली जो इन्फॉर्मेशन आई तो सभी स्टूडेंट्स बार बार कॉल कर रहे थे कि मैम हम कब जा सकते हैं। तो भी जब बीएफएस ही नहीं खुले तो पासपोर्ट स्टैंप नहीं हो रहा तो तब तक तो नहीं राइट। स्टूडेंट जा सकते। एंड इवन आई थिंक कि स्टूडेंट्स को ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए ऑनलाइन जो स्टडीज की ऑप्शन है, तो मुझे लगता है फ्यूचर में यही सबसे
बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि हम जाएंगे और अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में जॉब स्टार्ट करेंगे। राइट। सो और अभी जैसे जैन इनटेक के लिए क्या डेडलाइन है सर, लास्ट डेट क्या है जैसे एडमिशन्स के लिए, अभी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं जिन्होंने भी जैन के लिए वेट कर रहे हैं बिल्कुल, या जैन जिनका इनटेक आइल्स की का जो रिजल्ट डेडलाइन है, राइट, 1 नवंबर हमारी डेडलाइन है। 1 नवंबर तक होपफुली हम बच्चों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और होपफुली हम जल्दी ही मे इनटेक भी हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। उसका प्रोग्राम मैट्रिक्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आप प्लीज स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। मैं स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि आप सेवन ओशंस इमिग्रेशन टीम के साथ अपना प्रोफाइल शेयर कीजिए, अपने एकेडमिक शेयर कीजिए, और हम फ्री असेसमेंट करेंगे। ऑल्दो जो हमारा एप्लीकेशन फी है वो $100 है, और बट ये जनवरी इनटेक की जो एप्लीकेशन होगी, हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हम एप्लीकेशन फी वेवर देंगे। सो वो मैं कंसल्टेंट जो हमारे हैं, जो हमारे पार्टनर कंसल्टेंट्स हैं सेवन ओशंस टीम के साथ, रुपिंदर मैम के साथ, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। सो मैं स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन शेयर कीजिए, अपने एकेडमिक्स, अपने पासपोर्ट कॉपी एंड अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, चाहे वो आइल्स हो, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो ड्यूलिंगो भी हो। ड्यूलिंगो 110 स्कोर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपको एक दिन के अंदर फ्री असेसमेंट हो जाएगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, और आप किस प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं। सो आपको जैसे ही आप एलिजिबल होंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और आपको 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर ऑफर लेटर मिल जाएगा कॉलेज रॉकीज का। ये जनवरी इनटेक हमारे लिए थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा इनटेक है, और हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स बची हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट को जितना जल्दी हो सके अपनी सीट ग्रैब कीजिए और जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप वेट करेंगे मई इनटेक का या सितंबर इनटेक का, तो ऑलरेडी कोविड की वजह से, चाहे वो मई इनटेक हो 2020 या मई इनटेक सितंबर इनटेक हो 2020, वो ऑलरेडी काफी बच्चों का मिस हो चुका है। और ये अगर वो और मई 21 या सितंबर 21 के लिए देखेंगे, तो जो एजुकेशन गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। it will be a huge gap in between their studies, so it is very difficult for us to justify and to accept their application in the future also. So मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि try to apply as soon as possible and choose wisely. This is the high time for you to apply for January intake and with a public college. एंड इवन आई वुड से कि सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है इस टाइम, और पीटी जैसे नॉन एसटीएस के लिए पीटी भी एक्सेप्टेबल है, Right. तो स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन टाइम है। आप कह सकते हो कि एक साल जैसे पूरा वेस्ट हो गया पिछला, हम कह सकते हैं मई और सितंबर सेशन, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स के लिए जिनकी जिनके पास आइल्स टेस्ट है, अभी जिन्होंने आइल्स Right. कंप्लीट कर लिया। तो एट प्रेजेंट लाइक एप्लीकेशन फी एंड व्हाट अबाउट द लाइक जो कोर्स फी है, हमारी ट्यूशन फी है, तो वो हम लोग कितना अभी चार्ज करें, उसमें क्या डिस्काउंट्स हैं एंड एनी स्कॉलरशिप फॉर गुड स्टूडेंट्स? डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबिलिटी की, तो कॉलेज रॉकीज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अफोर्डेबिलिटी ही है। बिकॉज जो हमारे प्रोग्राम्स है वो ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बट जो जो उनका कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। एक पब्लिक कॉलेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे इन एन अफोर्डेबल मैनर। सो हमारा पर सेमेस्टर का जो फीस है सभी प्रोग्राम का वो है $6,325 सो एनुअली इट कुड बी अराउंड 13,500। सो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक इंस्टीट्यूट, बिकॉज उनका स्टार्ट होता है अराउंड 16,000, 17,000, इवन 18,000 से स्टार्ट होता है। बट विद कॉलेज रॉकीज दे विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी इन देयर ट्यूशन डिपॉजिट्स। दूसरी बात अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट के लिए जो अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं और जो पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस भी देखते हैं, सो कॉलेज रॉकीज उनको भी सपोर्ट करता है। पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम कॉलेज को ओरिएंटेशन डे वाले दिन ही प्रोवाइड कर देते हैं। वो सिटी के अंदर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, एंड वेजेस बहुत अच्छी हैं सिटी के अंदर। अगर मैं बात करूँ, आपको पता ही है 20 आवर्स पर वीक सभी बच्चों को अलाउड है एज अ पर वीक एज अ पार्ट टाइम। सो $10 to $15 पर आ रही हमारी मिनिमम वेजेस हैं क्रैनबुक सिटी के अंदर। और ये सिटी क्रैनबुक सिटी जहाँ पे हमारा कैंपस है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कैंपस है, और ये सिटी भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर मैं लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ, सो विद इन $150 to $200 पर वीक उनको बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिल जाता है, होम स्टे फैसिलिटी मिल जाती है विद ऑल द अमेनिटीज, विद फ्री वाईफाई, टेलीफोन, लॉन्ड्री, सिक्योरिटी सिस्टम विल बी देयर, एंड डेफिनेटली हर तरह का उन्हें सपोर्ट मिलता है। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को वहाँ पे काफ़ी जाके स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका जो स्ट्रगल पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है, और उनके लिए अर्निंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
जो तीसरी मैं बात करता हूं, जो आप स्कॉलरशिप्स की पूछ रहे थे, सो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं, सो हमारी डेडिकेटेड अभी किसी पर्टिकुलर, जैसे सभी स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप नहीं है, बट उन स्टूडेंट के लिए जो अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करते हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 70% मार्क्स है। अगर बच्चे 70% स्कोर करते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, सो उनको थर्ड सेमेस्टर की जो ट्यूशन डिपॉजिट है उनमें उनको डिस्काउंट मिलता है। सो मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, उनको उनके 74% मार्क्स आए थे जनवरी इनटेक में, जनवरी 20 में। तो उनको सेकंड जो उनकी थर्ड सेमेस्टर की ट्यूशन फी थी उसमें $1500 की स्कॉलरशिप मिली थी। सो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो अच्छा स्कोर करें एंड देन दे कैन गो फॉर अ स्कॉलरशिप। ये हमारी इंटरनेशनल टीम जो हायर टीम है वो डिसाइड करती है, जो हमारी फैकल्टी जो स्कोर कार्ड्स भेजती हैं उस पर भी डिसाइड होता है। इवन एट प्रेजेंट तो फीस स्ट्रक्चर ही हमारा बहुत बेटर है, तो इसमें स्कॉलरशिप तो, और आई डोंट थिंक, मतलब ये हम कह सकते हैं सबके लिए स्कॉलरशिप ही है ये तो, डेफिनेटली क्योंकि जो फीस। फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत अफोर्डेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खासकर पेरेंट्स की बात करूं, पेरेंट्स अपने जो अपने जो बच्चे हैं, जो उनके हैं, उनको भेजना चाहते हैं कि ऐसा कॉलेज हो जहां पे उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक पब्लिक इंस्टीट्यूट हो, खासकर अफोर्डेबिलिटी थोड़ा सा हो। रीजन बीइंग कि जो ट्यूशन फी है वो पेरेंट्स ने पे करना होता है। सो एट प्रेजेंट जब बच्चे ट्यूशन फी इजीली पे कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट टाइम ऑप्शंस में उनको अर्निंग सिचुएशन शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लास्ट सेमेस्टर का फी ही अपने पार्ट टाइम वर्क ऑप्शन से पे कर देते हैं। सो सिचुएशन इतनी अच्छी रहती है स्टूडेंट के लिए। खासकर अगर लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो ये डे टू डे रिकरिंग कॉस्ट जो इनकी होती है, अगर मैं बड़ी का सिटी से कंपेयर करूँ, चाहे वो वैंकूवर हो गया, चाहे वो कैलगरी हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, ये बड़ी बड़ी सिटीज में लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई है। और जॉब ऑप्शंस डेफिनेटली, ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं मिल पाती है, मिलती भी है तो बहुत अंडरपेड होते हैं। क्रैनब्रुक सिटी के अंदर ये सिचुएशन नहीं है, बहुत इजीली उनको पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस मिल जाते हैं और वेजेस बहुत अच्छी आई हैं। तो विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या बाकी जो चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही ईजी है अभी फिलहाल। अगर मैं बात करूं गैप्स की या बैकलॉग्स की, सो 12th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम 3 इयर्स का गैप हम बच्चों का भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स का गैप हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट शुड बी जस्टिफाइड। और अगर बैकलॉग्स की बात करूं तो 6 बैकलॉग्स 3 इयर्स के बैचलर्स में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो 2 बैकलॉग्स पर ईयर आप कह सकते हैं। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए। सो इवन आई वांट टू ऐड समथिंग ऑन इट। आपने एक्सप्लेन कर भी दिया है कि जो गैप है, गैप डजंट मीन कि आपने कुछ भी नहीं किया 3-4 सालों में और लाइक वी आर एलिजिबल फॉर द सेम कॉलेज। वो जस्टिफाई होना जरूरी है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, द रीजन उसका होना चाहिए कि क्या रीजन है, या आपने अगर कोई जॉब किया है, कोई प्राइवेट जॉब किया है, या आपने कुछ छोटे कोर्सेज किए हैं, लाइक वो जस्टिफिकेशन होना, एक जायज जस्टिफिकेशन होना जरूरी है जेन्युइनली, कि आपने क्यों ये स्टडीज आपने ड्रॉप करी। राइट। ओके। And like what kind of employment students can get in Cranbrook, sir? So जैसे आपने फ्रेंकली बताया कि स्पीकिंग, wages राइट yeah. राइट। सो अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी की बात करूँ, सो क्रैनबुक सिटी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इफ आई गिव यू अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर सिटी, इट्स इन ब्रिटिश कोलंबिया। ऑब्वियसली ब्रिटिश कोलंबिया एक वैसे ही बहुत सक्सेसफुल प्रोविंस है, खासकर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर मैं बात करूँ क्रैनबुक सिटी की, सो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और अपना वेकेशन स्पेंड करते हैं, अपना पैसा स्पेंड करते हैं। और इनकी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म को और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। एडवेंचर स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, स्कीइंग, स्नो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पैराग्लाइडिंग, इस तरह के जो स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जब वो पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस के लिए जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ईटरीज हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं। यहाँ पे ऐसी, ये एक मॉडर्न सिटी है। ऑल्दो इट्स इन रीजनल एरिया, बट ड्यू टू टूरिस्ट अट्रैक्शन ये एक मॉडर्न सिटी है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। सो पार्ट टाइम लेना यहाँ पे बहुत ही इजीली उनको अवेलेबल हो जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, अगर प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद बच्चे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, सो कॉलेज उसमें भी बच्चों को हेल्प करता है, बिकॉज हमारे सभी इनटेक से पहले करियर एंड जॉब फेयर ऑर्गेनाइज होते हैं हमारे क्रैनब्रुक कैंपस के अंदर। कैनेडियन कंपनीज हमारे कैंपस के अंदर आती हैं और बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं। वो अपना रिज्यूमे कंपनीज के साथ शेयर कर सकते हैं।
डेफिनेटली उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। कोई अच्छी प्रोफाइल होती है या कोई अच्छा स्टूडेंट होता है, वो ऑन स्पॉट हायर हो जाता है उनकी कंपनीज के लिए, क्योंकि आपको पता है ये 3 इयर्स का PGWP अवेलेबल होता है सभी स्टूडेंट के लिए। सो ये अपॉर्चुनिटी उनको कैंपस के अंदर ही मिल जाती है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमारा एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस। ये क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस प्रोग्राम ऐसा है जिसमें बच्चों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जॉब मिल जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट में डेस्क जॉब करने वाली जो जॉब होती है वहां मिल जाता है उनको ऑप्शन। हमारी करनपुर सिटी के अंदर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी बहुत बड़ा है, जैसे हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म है, वैसे ही माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की कंपनीज और इसका बिजनेस बहुत ज्यादा है। तो इन कंपनीज में भी उनको जॉब मिल जाती है। कंप्लायंस टीम होती है सभी कंपनीज के अंदर, एम्प्लॉयमेंट लॉज और HR की टीम होती है। तो यहाँ पे उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स अवेलेबल होती है। टूरिज्म मैनेजमेंट करने के बाद या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करने के बाद डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, ये सिटी ही टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी पे है, तो उनको होटल में, होटल मैनेजमेंट के बाद करने के बाद होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में व्हाइट कॉलर जॉब्स मिल जाती हैं। बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद, जैसे मैंने बोला, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग कंपनीज हैं, यहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है। या फर्दर उनको सभी स्पेसिफिक प्रोग्राम करने के बाद, चाहे वो अकाउंटिंग का करें, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का करें, चाहे वो मार्केटिंग का करें, तो व्हाइट कॉलर जॉब्स बच्चों के लिए अवेलेबल है और कॉलेज उनको सपोर्ट करता है। ओके। सो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी डिटेल में हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा अबाउट द कॉलेज ऑफ रॉकीज एंड अबाउट द कनाडा एंड क्रैनबर्ग। So, anything else do you want to add, sir? Because we have some questions from the students, like 3 or 4 questions. So, श्योर, should डेफिनेटली। we सो proceed मैं with the मैं मैं first? स्टूडेंट से डेफिनेटली स्टूडेंट से मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जो जनवरी का जो इनटेक है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा ऐसा इनटेक है जिसमें आपको बहुत ही वाइजली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और वो चूज करना पड़ेगा कि आपको जनवरी इनटेक के अंदर ऑनलाइन पढ़ना है, पर ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए है। ऑनलाइन अडॉप्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, या आप इससे घबराए नहीं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए सिर्फ जनवरी इनटेक आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप मेन टेक में आप फ्लाई कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम एज ए रेगुलर स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें आपका ही बेनिफिट है, आपका PGWP हैम्पर नहीं होने वाला है। आपका जो ट्यूशन डिपॉजिट है वो भी उतना ही चार्ज होगा जितने कोर्सेज के लिए आप चूज करेंगे जनवरी इनटेक। मिनिमम 3 कोर्सेज हम बोलते हैं, मैक्सिमम 5 कोर्सेज हैं। अगर रेगुलर इनटेक में बच्चा जाता है तो हम 3 कोर्सेज के लिए बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप 3 कोर्सेज चूज करिए और अपना ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। बाकी अपना प्रोग्राम जैसी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटेंगी, कॉलेज इनवाइट करेगा, डेफिनेटली आप वहां जाके कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैथमेटिक्स को लेके, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है स्टूडेंट के लिए, मेन टेक वाले जो जाना चाहते हैं कि अगर उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक अपग्रेड प्रोग्राम करना होगा। अभी हम ओपन स्कूल के स्टूडेंट, ओपन बोर्ड के स्टूडेंट अभी हम नहीं ले रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम रेगुलर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो CBSE हो, ISC हो, PSCB हो, ऑल काइंड ऑफ स्टेट बोर्ड्स विल बी एक्सेप्टेड। SOL NIOS अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके। वन थिंग मोर सर, ये जो आप मैथ्स की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा? डेफिनेटली अगर बच्चों ने मैथमेटिक्स का अपग्रेड प्रोग्राम के लिए जाना है तो वो एक तरह से प्रोग्राम होगा प्रॉपर, और उसका $1400 अप्रोक्सीमेटली उसका प्राइस होगा। और डेफिनेटली वो इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। अगर बच्चे वो प्रोग्राम को कम पास कर लेते हैं तो वो बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, और वो डेफिनेटली एड ऑन होगा उनके क्रेडिट्स में। सो ये उनके लिए ही अच्छी सिचुएशन है। ये इसलिए है क्योंकि उनके पास 12th ग्रेड में मैथमेटिक्स नहीं था, तो वो बैलेंस करने के लिए, उनके क्वालिफिकेशन को एनहांस करने के लिए, ताकि वो आगे का प्रोग्राम इजीली कर सके, खासकर बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में अगर बच्चे के पास 12th में मैथमेटिक्स है तो इजीली कोप अप कर लेते हैं उस प्रोग्राम को। अगर 12th में मैथमेटिक्स नहीं होता तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक तरह से उनका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ये करने के बाद, और बाकी का जो प्रोग्राम है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी रिटेनरशिप बहुत ज्यादा हाई है। बच्चे अपना प्रोग्राम कंप्लीट करके ही कॉलेज और ऑफिस से निकलते हैं, बीच में प्रोग्राम नहीं छोड़ते हैं, बिकॉज हमारा जो क्राइटेरिया है, ये जो हमारा कोर्स का डिजाइन, जो हमारा लॉगिग्राम बना हुआ है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बना हुआ है। Okay. Thank you so much, sir. So we are going to take a few questions. So Sure. Mehak Sharma is asking, hello, good afternoon. I have recently done my IELTS and scored 6.5 overall. I have done arts in 10+2. Kindly suggest me any diploma related to law and explain the fee structure also.
या सो अगर इन्होंने अभी रिसेंटली ही +2 किया है तो डेफिनेटली मैं इनको सजेस्ट करूंगा क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है अगर वो लॉ रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं। सो ये प्रोग्राम उनको डेफिनेटली जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स है, व्हाइट कॉलर जॉब उनको मिलेगी। जैसे मैंने डिस्कस किया, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे किसी कंपनी के अंदर कंप्लायंस टीम के अंदर हो, चाहे वो एज अ सीए फर्म के अंदर असिस्टेंट हो, चाहे वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर डेस्क जॉब की वर्कर की जॉब हो। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज एट द टाइम ऑफ जो हमारा करियर एंड जॉब फेयर्स होते हैं उसमें बच्चों को मिल जाती है और कॉलेज डेफिनेटली उनको सपोर्ट करता है। सो ये प्रोग्राम मैं उनको सजेस्ट करना चाहता हूँ। Okay. Another is Ridhima Singh. So kindly tell me the 5 lost after 15 September are getting visas or AIB. So I'm confused. So you want to answer this question? ओके, सो इनका इनका ये है कि 5 सितंबर के बाद उन्होंने उनका एआईपी आया है और ये किस इनटेक के लिए जाना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर वो सितंबर इनटेक के लिए जाना चाह रहे हैं तो सितंबर इनटेक, अगर स्पेसिफिकली कॉलेज रॉकीज की बात करें, सो हमारा कॉलेज रॉकीज का तो सितंबर इनटेक 23 को क्लोज हो गया था। उसके बाद हमें एआईपी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उनको डेफर कराना होगा जनवरी इनटेक के लिए। चाहे दूसरा कॉलेज भी है तो डेफिनेटली उनको जनवरी इनटेक के लिए डेफरमेंट करवाना होगा। आई एडवाइस रिधिमा, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि आपने कुछ क्लियरली नहीं मेंशन किया कि आपने कौन से कॉलेज के लिए सितंबर के लिए अप्लाई किया। सो क्लियर नहीं है सारी चीज़ें, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एंड one more question from Gagandeep Kaur. Please tell me, can I get admission in business program without maths? Because I have not studied maths. So I think we have discussed it already. We were discussing about the mathematic requirements. राइट, सो अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो मे इनटेक के लिए आप जरूर जा सकते हैं और डेफिनेटली आपको एक मैथमेटिक्स का अपग्रेड प्रोग्राम करना होगा और आप डेफिनेटली मे इनटेक के लिए एनरोल हो सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आपको एलओए मिल जाएगा जैसे ही आप मैथमेटिक्स टेस्ट पास करते हैं। एंड इवन मे के लिए भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि मे के लिए वो अभी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मे के लिए उतनी सीट्स भी नहीं होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी जिनका केसेस आइल्स की वजह से पेंडिंग है, तो वो सब बच्चे जैन और मे के लिए अप्लाई करें। तो मे के लिए अभी से एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं, तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हमारे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। So, so thank you, Mr. Sunny. I think we have discussed everything about and detail में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी है. So I would say thank you so much for your precious time and definitely students को बहुत सारी information मिल गई होगी. उसके बाद भी अगर students कुछ भी जानना चाहते हैं तो they can contact us directly. So once again, I would say thank you so much, sir. Thank you for your valuable time. Thank you, Rupinder ma'am, and thank you so much to the entire team of Seven Oceans Immigration for conducting this session. And hopefully, we'll be getting some applications, good applications specifically for January intake and May intake, obviously. And I request all the students to choose wisely, and definitely you can coordinate with the team of Seven Oceans Immigration. They are very good in their counseling and their work. So definitely I request you to kindly share your application and get your application assessed on free of cost. We are not charging anything for a free assessment. आप अपनी एप्लीकेशन भेजिए, फ्री असेसमेंट कराएं और देखिए कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना एप्लीकेशन फी पे करेंगे। हो सकता है आपको जनवरी इनटेक के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको $100 का एप्लीकेशन फी भी वेवर मिल सकता है और आपको 7 to 10 डेज के अंदर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कॉलेज रॉकीज की तरफ से। फी स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है, 6325 पर सेमेस्टर हमारी फी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ईजी है। सो मैं यही बोलूंगा स्टूडेंट से कि टीम के साथ आप अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए, सेवन ओशन इमिग्रेशन को आप कॉन्टैक्ट कीजिए एंड जनवरी इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मे इनटेक जल्दी ही हमारा ओपन होने वाला है, मैं डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा टीम के साथ, आप मे इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। So thank you so much. Thanks for your time. Stay safe, stay healthy, and stay connected. And I want to say that हमारा और हमारे स्टूडेंट्स का जो COTR के साथ एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है और सक्सेस रेट भी बहुत ही अच्छा है। Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। Thank Thanks you. a lot. Thank you. Thank you. So even
अभी मई के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज ऑफ रॉकीज भी अभी जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपने मई सेशन के लिए अगर असेसमेंट करवाना चाहते हैं, एंड द जैन 2021 is still open. So I would say thank you so much once again to our viewers.